مشکلات، مسائل، یہ چیز ایسی ہے جو رب کو کہتی ہے کہ اللہ ہے اور اس کا تعارف ہے، اللہ ہے اس کا تعارف ہے۔ ہم جتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں، ان کی بنیادیں جتنی مضبوط کر لیں، میرا رب زمین کو حکم دیتا ہے تو زلزلہ بن جاؤ۔ دنیا کی آج تک کوئی سائنس اور دنیا کی آج تک کوئی طاقت ان جھٹکوں کو روک نہیں سکی اور نہ کبھی روک سکے گی۔ دنیا کی طاقت آج تک نہیں روک سکی۔ اللہ کا امر ہے، اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، اللہ اپنی قوت دکھاتا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اللہ کے صفاتی نام میں ڈوب کے دیکھیں تو صحیح، اور اللہ کے صفاتی نام کے اندر گہرائی میں جائیں تو صحیح کہ صفاتی ناموں کو ہے کیا ان کے اندر طاقت اور ان کے اندر قوت کیا ہے۔ صفاتی ناموں میں طاقت کیا ہے اور قوت کیا ہے، آپ ڈوب کے دیکھیں تو صحیح۔ اللہ کے ناموں ایک احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنی محبت کا معاملہ کیا اور کتنے احسان کا معاملہ کیا۔ ایک بابا جی ملے مجھے ایک سفر میں، بہت موٹے تھے۔ میں نے کہا آپ کا نام کہنا، میرا نام ہے مقبول موٹا، خود کہہ دیا موٹا۔ میں کیوں کہہ لیں مجھے موٹا کہتے ہیں مقبول، تو اس لیے میں نے آپ کو نام۔ وہ بڑے لمبے لمبے سفر بائک پہ موٹر سائیکل پہ کرتے تھے، بس کے اندر چڑھ نہیں سکتے تھے، موٹے اتنے تھے، سیٹ پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھتے تھے نکل نہیں سکتے تھے، بہت کھاتے تھے، کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، پھر سو کے ایسے بازو کر کے ویسے کھاتے رہتے تھے۔ 3 کام، کھانا، سونا اور بیت الخلا۔ میں نے تو یہ 3 کام دیکھے۔ اچھا، وہ بندہ رونے دھونے والا بہت تھا، اللہ سے مانگنے والا بہت تھا، بڑا نیک آدمی تھا، درویش آدمی تھا۔ قمیضوں اور شلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میری شلوار خراب ہو گئی ہے، حالانکہ ہوتی نہیں تھی میرے خیال میں، بس ناپاک ہو گئی، اب وہ کپڑے بدل رہا ہے، ڈھیر۔ پھر ایک قمیض کے اوپر دوسری قمیض پہن لی، دوسری کے اوپر تیسری پہن لی۔ کہنے لگے ایک سفر تھا تو میرے جو ہے ہم سفر تھے، وہ مجھے لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ کھائے گا سارا دن، اس کا کام ہی کھانا ہے، پھر ادھر کھائے گا، پھر ادھر ٹوائلٹ جائے گا، بیت الخلا میں جائے گا، پھر سوئے گا۔ موئے نانگ کو جو گھیلوں دے، مویا نانگ، مرا ہوا سانپ ہو، اس کو بندہ گھسیٹتا رہے، کیا فائدہ؟ انہیں کہا ہم نہیں لے جاتے تجھے۔ بڑوں کے پاس بھی جا کے کہہ دیا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ بس کہا میرے اندر جو درد اور غم آیا، میرے اندر جو درد اور غم آیا، اور اس درد اور غم نے میں نے اس سے کہا، مجھے کہنے لگے میں نے یا قہارو پڑھا، رات کو بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیسے پڑھا؟ پھر انہوں نے مجھے بیٹھ کے ویسے پڑھ کے دکھایا، یا قہارو یا قہار، ایسی جذبے کے ساتھ، یہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ ایسے درد سے پڑھا، ایسے غم سے پڑھا، اور تو نہیں کتنے سینکڑوں اور کتنے ہزاروں دفعہ پڑھا، اور کتنی دفعہ اللہ سے کہا، اللہ تو مان جا، تو غلبے والا ہے، تو غالب ہے، تو زبردست ہے، تو طاقتور ہے، اللہ یہ چھوٹے تو بڑا ہے، اور تو فیصلہ کر لے تو ہر چیز ممکن ہے۔ جو اللہ سے منوایا، کہا صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے،
کہ بس ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے, آپ کے سارے ناز ہم اٹھائیں گے, آپ کے سارے کھانے ضرورتیں ہم پوری کریں گے, بس آپ ساتھ چلیں, آپ ناراض نہ ہوں. اس نے عرشوں سے فیصلہ کروایا اور اللہ کے غلبے کو اور اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی قوت کو عرشوں سے اتروایا لفظ یا قہاروں کے ذریعے. اللہ کے صفاتی نام یا قہاروں کی طاقت کے ذریعے عرشوں سے نظام اتروایا. حضرت مرزا مظہر جانی جانا رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تھوڑی سی آزمائشیں دیں, اتنی دینا جتنی میں سہ سکوں, کہ آزمائشوں میں جو روحانی منزلیں طے ہوتی ہیں وہ آسائشوں میں نہیں ہوتی. آسائشیں کہتے ہیں سہولتیں, آسائشیں کہتے ہیں سہولت. اللہ وہ آسائشوں میں نہیں ہوتی. یا اللہ کوئی آزمائش دے. آواز آئی میرے بندے آزمائش نہیں سہ سکے گا, اب اگر آزمائش مانگی ہے تو تجھے آزمائش دیتا ہوں. اللہ نے بیوی کی شکل میں آزمائش دے دی. اوہ ساری عمر اس اللہ کی بندی نے بے عزت کیا اور پریشان کیا ساری عمر, اور یہ صبر کرتے رہے. شیخ ابو الحسن فرقانی رحمت اللہ علیہ محمود غزنوی کے مرشد, سلطان محمود غزنوی کے مرشد, ان کے گھر میں ایک بندہ گیا حضرت کے ملنے کے لیے. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے بیوی نے کہا کون حضرت؟ تیری بھی ایسی کی تیسی, تیری حضرت کی بھی ایسی کی تیسی. پتہ نہیں کیا کچھ کہا, پتہ نہیں کیا کچھ کہا. وہ کہنے لگا کہ ان کی تبلیغ گھر میں تو چل نہیں سکی, مجھ پہ کیا چلے گی؟ گھر میں بیوی پہ تو چل نہیں سکی, ان کی تبلیغ مجھ پہ کیا چلے گی؟ وہ جو ہے نا بدگمان شک و شبہ میں واپس جا رہے, دیکھا تو سامنے شیخ آ رہے تھے شیر کے اوپر لکڑیاں لادے ہوئے, اور شیر کو کانوں سے پکڑے ہوئے, جنگل سے نا لکڑیاں کاٹ کے لا رہے. تو اس نے اشارہ کیا, ٹھہر گئے. انہوں نے کہا ایک وہ شیر نہیں ہے, ایک یہ شیر ہے, یہ کیا منظر ہے؟ وہ شیر نہیں میں نے کہا ہے, اس نے نہیں کہا. انہوں نے کہا سرکار ایک وہ شیر نہیں ہے, ایک یہ شیر ہے, یہ منظر کیا ہے؟ فرمایا اسی کے برداشت میں یہ ولایت ملی ہے, اللہ نے مسلط کر دی میرے اوپر. ایک درویش تھے حکیم الامت کہتے تھے, وہ کہتے تھے درویشوں کی بیویاں 1.5 خصم ہوتی ہیں. 1.5 خصم, خصم کہتے ہیں شوہر کو, ایک شوہر اور دوسرا آدھا. اور درویشوں کی بیویاں کیا ہوتی ہیں؟ 1.5 خصم ہوتی ہیں. قرآن پاک کی آیت آپ کو بتا رہا ہوں, واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا. گھریلو جھگڑوں کے لیے, گھر کی نفرتوں کے لیے, گھر کی الجھنوں کے لیے, گھر کی نوک جھونک کے لیے, گھر کے امن برباد ہو گیا ہے کسی بہو کے آنے کی وجہ سے, یا کسی داماد کے آنے کی وجہ سے, یا کسی نوکر کی وجہ سے, یا بیوی میاں کی وجہ سے, یا آپس میں بچوں کی کسی وجہ سے نفرتیں ہیں گھر میں. میں آپ کو پھر کہہ دوں, میں وظیفے بناتا نہیں ہوں, بتاتا ہوں. اکابر کی میرے ہر وظیفے کی سند ہے, اگر دیکھنی ہے تو آپ فیس بک واٹس ایپ پہ انگلش میں لکھیں اکابر پر اعتماد, بس یہ لفظ لکھیں گے, سارے میرے وظیفوں کے حوالے ریفرنس قرآن سے, حدیث سے, محدثین مفسرین سے, اکابر سے ملیں گے. میں ڈاکیا ہوں, میں تو اپنے بڑوں کے پیغامات انسانیت کے امن, بچے بھی وہ بھی بچہ چھوٹے ان کے پاؤں اپنی آنکھوں سے لگاتا ہوں. مولا یہ پاک پاؤں ہے, پاک پاؤں, یہ وہ پاؤں ہے جو تیری نافرمانی کرنا سیکھے ہی نہیں ابھی تک, اور نافرمانی کے قدم چلے ہی نہیں. میں اپنے آنکھوں سے لگاتا ہوں, میں آپ کو اپنی دیوانگی بتا رہا ہوں. آپ کریں نہ کریں, میں آپ پہ اصرار نہیں کر رہا, میں آپ کو اپنی دیوانگی بتا رہا ہوں. آنکھوں سے لگاتا ہوں معصوم بچے کے پاؤں. اے اللہ ان پاؤں کا نور میری نظروں میں دل سے لگاتا ہوں, میرے دل میں آتا ہوں. بچے چھوٹے ہوتے تھے تو سینے پہ رکھتے تھے, مچل جاتے تھے, بھاگتے تھے ادھر ادھر.
जब सो जाते थे फिर मैं इनको सीने पे रख के लिटाता था और कहता था अल्लाह जो इस सीने में खैर नहीं शर है वो इन्हें अता न कर, जो इनकी खैर है मुझे अता कर। इनके सीने में नूर ही नूर है, इनके सीने में राहत ही राहत है, इनके सीने में अनवारात ही अनवारात है। क्यों? मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खवातीन मस्जिद नबवी में पर्दे के पीछे नमाज पढ़ने तशरीफ लाती थी। कोई बच्चा अगर रोता था हुजूर अपनी नमाज मुख्तसर फरमा देते थे। हाँ, नमाज मुख्तसर कर देते थे बच्चे के रोने पे, नमाज मुख्तसर कर देते थे। और हत्ता के सरकार का फरमान है मेरे आका कमली वाले का कि अगर बेजुबान और बच्चे न होते अल्लाह जमीन को तांबे की बना देता, आसमान से कतरा भी ना उतरता। जमीन को जमीन तांबे की बन जाती, आसमान से कतरा भी ना हो। हाँ, आसमान से एक कतरा भी ना, एक कतरा। खुद सोचें, ये छोटे छोटे एक कुर्सी वाले बंदे को कहना हो नहीं पास कहना हो, कुर्सी सुधा कुर्सी भी कहना हो तो बंदे को नहीं कहना। क्या अजीब मैं आपको बात बता रहा हूं, सुने गौर से, मेरी तरफ देखें, फिर सुने। दो बंदे, एक बच्चे और एक बेज़बान, बच्चे और बेज़बान अगर ना होते तो अल्लाह पाक रिस्क बंद कर देता, सब कुछ बंद हो जाता। आज के बाद आप बच्चों के साथ क्या मामला करेंगे बताएं? वो कुर्सी वाले को देखी दो और मेरे को देखो, क्या करेंगे बताएं? बोले ना, शफकत प्यार दीदा मगाली कहनी की जी की वो करेंगे नहीं, मैं झूठा पीमना पोस ओ झूठा पीमन वड़ा हां दा कम है। बोले फिर बताता हूं वो टोटका जो मैं करता हूं, और इसके मेरे पास हवाले हैं, इसकी मेरे पास सनदें हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा कि ये कहां लिखा हुआ है? मैंने कहा तू अकाबिर को पढ़ना ही छोड़ गया, अकाबिर को पढ़, फिर पढ़, फिर पढ़। हमारे बड़ों ने हमें जो राहें दी हैं वो खैर की राहें हैं, आफियत की राहें हैं, और उसमें बरकत की राहें हमारे बड़ों ने जो दी हैं। खवातीन का एक बहुत बड़ा मजमा है, मेरी बात को सुन रहा है, आप हजरात भी सुन रहे हैं, यकीन जाने। मैं बच्चे का जूठा पीता हूं, उसमें लुआब भी होता है, उसकी थूकें भी होती हैं, खाने के जर्रे भी होते हैं, वहीं से मुंह लगाता हूं कि मौला इससे बड़ा मासूम कोई नहीं। मोमिन के जूठे में आका का फरमान है, शिफा है, शिफा है, शिफा है। कोई भी मसला हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, मुश्किल हो, बच्चे का जूठा पिए। बड़ों और बुजुर्गों का जूठा शिफा है, बरकत है, उसमें इनकार नहीं, लेकिन बच्चों के जूठे का अमूमी तस्करा नहीं। मैं इसलिए इसका तस्करा कर रहा हूं, अमूमी तस्करा नहीं, कि बच्चों के जूठे का अमूमी तस्करा नहीं, अमूमी तस्करा नहीं। और दूसरा मैंने अर्ज किया कि बच्चों को सीधे से लगाया करें, निस्बतें मुंतकिल होती हैं। शाह इलियास रहमतुल्लाह अलैह आखिरी लम्हे में अपने बेटे यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, आजा बेटा यूसुफ हम चले, सीने से सीना लगाया, बहुत देर तक रोते रहे, रुखसत हो गए। सुबह मिंबर पे बैठे थे यूसुफ साहब, और जिस्म था अब्बा का, और जुबान थी अब्बे की, और जज्बा था अब्बे का।
निस्बतें मुंतकिल होती हैं। बच्चे को मैं एक गदरड़ी हवेली है ना, हवेली के सामने एक गांव है, बस्ती है मोहब्बतपुर। नवाब मोहब्बत खान था रियासत भावलपुर का, उसका नाम मोहब्बत खान था। तो वो उसने 100 रुपए दिया पीर साहब के, मैं साथ था। पीर साहब दुआ करें, गुर्बत बहुत है। एक बार मुझे मिला, मैं कोई कितनी बाल हैं तेरे, गरीब के बाल बहुत सारे होने, मैं कितनी बाल ना कितनी बाल, मैं कह रुपए दिया टिक्या हैं, टाफियां, रुपए की उस वक्त टाफियां बहुत सारी मिल जाती थी। बच्चों को बिठा सामने, जो दिल में दुआ आती है ना, वो अल्फाज हैं अल्लाह से मांग, और बच्चों को कहे वो आमीन कहे। बच्चों की गफलत की आमीन भी कबूल है, क्यों? उनकी तार अल्लाह से जुड़ी हुई है, उनका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ है, उनकी निस्बतें अल्लाह से जुड़ी हुई हैं। उनकी गफलत की आमीन भी बहुत बहुत आमीन है। मैंने कहा रोज ये अमल कर, दूसरे दिन तीसरे दिन कर, हफ्ते में एक दफा कर। रुपए की टाफियां बच्चों को, मैं कह पहले न दे ना तो खा ले, बच्चे से नहीं, पहले ना देना, टाफियां सामने रख, आमीन कहना। कुछ अर्से के बाद मुझे मिला, मुझे कहने लगा रब ने तवंगरी के दरवाजे खोल दिए। मौलाना याकूब नानोतवी एक हमारे बड़े गुजरे हैं, बच्चों को जमा करते थे, उनको खिलाते थे और कहते थे तुम दुआ करो मैं आमीन कहता हूं। कोई तोतली जबान में, कोई टूटी जबान में दुआ करते थे और आमीन कह के अल्लाह से कहते थे अल्लाह दुआ कर रहे हैं मासूमीन और आमीन कह रहे हैं फरिश्ते। तसव्वुर फरिश्तों का करते थे। अल्लाह अब भी किसी कबूलियत का शक है, आप तो अता कर दे। सच्ची बात है, अभी भी कबूलियत का शक है, अल्लाह अब तो अता कर दे। और कसम उठा के फरमाते थे कि मेरी हर दुआ कबूल होती है जो मैं बच्चों से कराता हूं, बच्चों से करा। मासूम बच्चों की दुआएं, उनमें बड़ी ताकत है, उनमें बड़ी तासीर है। छोटा मासूम बच्चा है, उसका जूठा, उसमें बड़ी ताकत है, उसमें बड़ी तासीर है, बहुत ताकत है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह हवाले इसलिए दे रहा हूं, अकाबिर को पढ़ना तो छोड़ गए, मैं माजरत से चाहूंगा, नावाकिफियत की है वजह, फिर कहां लिखा हुआ है। सयूती ने फरमाया पहलोटी का बच्चा हो, पहला बच्चा पलोटी का बाल हो, बड़ा धी हो या पुत्र हो, पहला बच्चा हो पहलोटी का, उसका जो उतरा हुआ कपड़ा है वो सिरहाने रख, उतरा हुआ कपड़ा है सिरहाने रख। और अजीब बात फरमाए, सूरत इन्ना अंजलना 40 दफा पढ़ ले बस। सूरत कदर इन्ना अंजलना 40 दफा पढ़, उसको सिराने रख और ये अमल 40 दिन कर। कपड़े को सिराने रख और ये अमल, कपड़ा उतरा हुआ हो, मैला हो, नया हो या पुराना हो, लेकिन पहना हुआ हो, 40 दफा सूरत इन्ना अंजलना पढ़। उस कपड़े पे पढ़ना जरूरी नहीं, कपड़े के साथ बैठ के पढ़, पढ़ के अपनी मुरादें, अपनी मुश्किलें, बीमारियां, तकलीफों का कर। कहा 40 दिन के अंदर अल्लाह तेरी मुरादें, मुश्किलें हल करेगा, तेरी बीमारियां खत्म करेगा, तेरी नाकामी खत्म करेगा। बच्चों के साथ तो उस करीम का अनोखा निजाम है, उस करीम का अनोखा निजाम है। बेजुबान, मैंने अर्ज किया ना हदीस का फरमान, मैं एक हदीस के 2 हिस्से बयान कर रहा हूं। आका का फरमान है, मफहूम है कि अगर बेजुबान और बच्चे ना होते, अल्लाह जमीन को तांबे का बना देता और आसमान से पत्थर ना गिरता और लोग तड़प के मर जाते कि रब इतना नाराज है और रब को इतना नाराज किया है अपनी खताओं और नाफरमानियों की वजह से। बेजुबान, एक घर था तो घर में जिन्नात ही जिन्नात थे, कपड़े काट देते, आग लगा देते। अभी उस दिन मेरे पास आया, उन्होंने कैमरे की वीडियो दिखाई है। कैमरे चूंकि हर जगह लगे, घर में खातून किचन में दाखिल हुई तो आग लग गई, किचन से निकली आग खत्म हो गई। जिन्नात के वाकयात बढ़ चुके हैं। हजरत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह इलाहाबाद तशरीफ ले गए।
اہل حدیث کے اللہ بات لیاقت پر کہ اہل حدیث حضرت کے مرید تھے. حضرت سے فرماتے تھے حضرت سارے گھر کے لوگ دعا کا فرماؤ چاہ مرشد آئیں. جس گھر میں جاتے کہتے فقیرو گھر گھر جنات اور گھروں لانگھا بڑائی کھڑے لانگھا آنا جانا بنایا ہوا ہے. جگہ دا قرآن تے تسبیحاں چھوڑے وے سجدے تے اللہ دا نا چھوڑے وے جن تو گھراں چ لانگے بڑائی کھڑے. جنات کے نظام چونکہ میرے پاس سارا دن آتے ہی دکھی لوگ ہیں. سکھی کیا کرنے آئے گا؟ دکھی آتا ہے. جنات کی دنیا بہت بڑھ گئی ہے حد سے زیادہ, اور جنات کی شرمناک حرکتیں اظہار نہیں کرتا بہت زیادہ بڑھ گئی, بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھ گئی. تو بات کیا کر رہا تھا پہلی, عمل کیا بتا رہا تھا؟ جنات کی کارستانیاں بہت بڑھ گئی ہیں. تو میرے پاس ایک صاحب آئے ان کے گھر میں جنات جیویں کہنا سی چھیڑ چھڑی کھڑی ہے. میں نے کہا منہ کھاوے تے آپ شرماوے. جو ہڈیاں کھا بکری کی گوشت ہے مرغی کا گوشت ہے جو بھی ہے ان ہڈیوں کو صاف جگہ رکھ. آقا کا فرمان ہے پھر سے اللہ ان ہڈیوں کو رزق لگاتے ہیں اور جنات کھاتے ہیں. حدیث میں موجود ہے, صحیح حدیث ہے. اور یہ کہے جنات کو کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. میں نے انہیں دو چیزیں بتائیں, اگلی چیز بھی ایک بتاتا ہوں. ہڈیاں ہم پھینک دیتے ہیں, ہڈیوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے. میں نے سے کہا ہڈیوں کو اپنے ساتھ صاف جگہوں پہ رکھ. کہیں بھی بظاہر بلیاں کتے کوے جانور کھاتے نظر آئیں گے, رب سچا, رب کا حبیب سچا, رب کے حبیب کا فرمان سچا کہ اللہ ان ہڈیوں پہ پھر سے خوراک لگاتے ہیں اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے. میں نے ان کی یہ عمل بتایا, اور ایک عمل اور کیا بتایا, وہ عمل بڑا عجیب ہے. میں نے کہا سارا دن جنات کو سلام کر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب نظر آتے نہیں, گھر میں سارا دن ان کی نیت کر کے سلام کر. تھک گئے اک گئے جن, آخر خوابوں میں آ کے کہنے لگے ہم آپ کو ذلیل خوار کرتے ہیں, ہم آپ کا نقصان کرتے ہیں. کیا کریں, ایک عامل نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہوا ہے, ہم اسی کے قابو میں ہیں, اور آپ ہمیں کھلاتے بھی ہیں, ہم کے سلامتیاں بھیجتے ہیں. سلام سے مراد سلامتی ہو, جات تجھ پہ رحمتیں ہوں. سلام سے مراد جات تجھ پہ برکتیں ہوں. سلام سے مراد تیرے اوپر بجلیاں نہ گریں. سلام سے مراد حادثے نہ ہوں. سلام سے مراد ناکامیاں نہ ہوں. سلام سے مراد تیرے گھر میں جھگڑے نہ ہوں. سلام سے مراد تیری فصلیں سلامت. سلام سے مراد تیرا جسم سلامت. سلام سے مراد تیری نسلیں سلامت. اور سلام سے مراد تیری نسلیں منگتی نہ ہوں, بھکاری نہ ہوں, محتاج نہ ہوں, سائل نہ ہوں, مفلس نہ ہوں. بے بہا مفہوم ہے اللہ کا نام یا سلام ہو. یہ السلام سلام, السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. ان کو سلام کر. میں بہاولپور پڑھتا تھا تو ایک صاحب کو دیکھا, اس کی ٹانگیں ایسے اوپر نیچے ہوتی تھی, اور ہر کسی کو السلام علیکم. ہم اکثر سلام صحیح نہیں کرتے, بعض اوقات مجھ سے بھی خطا ہو جاتی. السلام علیکم, السلام علیکم کیا لفظ, اور ابھی بڑی نازک زبان ہے, اس لیے میں اکثر اعتراف کرتا ہوں مجھے عربی صحیح نہیں آتی, اردو بھی صحیح نہیں آتی, زیر زبر میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے میری عربی میں اکثر اپنے چینل ٹی وی پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ یہ میں دعا پڑھ رہا ہوں, زیر زبر ٹھیک کر لیجیے گا. وہ سلام کرتا تھا, ہر وقت سلام کرتا. کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک دم اس سے پوچھا آپ سلام کیوں کرتے ہیں, یہ ٹانگیں کیا ہیں آپ؟ کہنے لگا میرے اوپر سے ٹرک گزر گیا تھا, ٹانگیں چورا چورا ہو گئی. جب میں ہوش میں آیا تو انہوں نے کہا دستخط کر تیری ٹانگیں کاٹنی. میں اپنی زندگی میں ٹانگیں نہیں کٹوا سکتا. انہوں نے کہا ساری عمر یہ ٹانگیں تیرے جسم کا میت بنیں گی, کچھ نہیں ہوگا, بے حس ہیں, گھسیٹتا پھرے گا, مصنوعی ٹانگیں لگ جائیں گے. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. آخر میں گھر آ گیا, چونٹی کاٹے مجھے پتا نہ, مکھی بیٹھے مجھے پتا نہ, پیشاب حاجت مجھے پتا نہ,
कुछ अरसे के बाद एक सियाना आया, उसने कहा ऐसा कर, व्हील चेयर में बैठ के दरवाजे बैठ के जो गुजरे ना उसको सलाम कर, क्या पता जवाब देने वाला वली है, कुतुब है, गौस है, कलंदर है, नकीब है, नजीब है, अबरार है या खिजर है। वल्लाह, क्योंकि जब वो जवाब देगा ना, जा तुझ पे सलामती हो, वालेकुमुस्सलाम, जा तुझ पे सलामती हो, तो उसकी सलामती क्या होगी? उसी सलामती में तेरे सारे काम बन जाएंगे, तेरा घर पूरा तीजे सी सलामती में तेरे सारे काम बन जाएंगे। कहा कि मैंने क्या किया, उसकी बात दिल को लगी, मैंने दरवाजे में बैठ के ना सलाम करना शुरू कर दिया। फिर कुछ ऐसे बात ख्याल हुआ, गली में लोग थोड़े गुजरते हैं, साथ चौक है, चौक में ज्यादा व्हील चेयर वहां रखवा दी, जो गुजरता था अस्सलाम वालेकुम, जवाब दे ना दे, वाकिफ हो ना हो, कहता है कि मेरे सलाम का जवाब कहना देता थे, क्यों करा? हाँ बोल गई तुम तो अल्लाह की रजा की खातिर सलाम कर, देखो रब काबा की कसम फरिश्ते जवाब दे से नहीं। लगे मैं सलाम करता रहा, कुछ ही अरसे के बाद मैंने महसूस किया कि चींटी का एहसास हुआ है, मक्खी का एहसास हुआ है, मैंने कहा काम बन गया। और हत्ता के आहिस्ता आहिस्ता बिसाखियां वॉकर करते करते मैंने कहा आप सलाम नहीं छोड़ना। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में तस्बीह थी, कहने लगे हजरत इतना मकाम पा लिया, अब भी तस्बीह, पर मैं जिस तस्बीह से मकाम पाया फिर वो छोड़ दूं? कहने लगे मैंने सलाम अब भी नहीं छोड़ा, जिस सलाम की वजह से इतना मकाम पाया, इतना दर्जा पाया, यानी सेहत तंदुरुस्ती और चलना पाया, फिर मैं सलाम छोड़ दूं? इसलिए आज हर किसी को कहता हूं अस्सलाम वालेकुम, हर बंदे को सलाम करते थे। और वो बंदा तेज चलता था, उल्टी सीधी ऐसे टांगे होती थी छोटी बड़ी, तेज चलता था। इस सलाम की बरकत से चलना मिला। तो मैं वाकया बयान कर रहा था, एक मैंने कहा हड्डियां रखे जो खाते हैं, अब आप वाकये को समझ रहे हैं, ये वाकये से वाकया निकला था। एक उनको सलाम करें, अल्लाह का जो लफ्ज है या सलाम है ना, एक बुजुर्ग बताते थे, बहुत बड़ी हस्ती थी, फरमाते थे जिस घर में झगड़े हों, लड़ाइयां हों, जिस घर में बेसकूनी हो, परेशानी हो, जिस घर में रिस्क ना हो, रोटी ना हो, उस घर में अल्लाह के नाम सलाम को ले आओ, उस घर में देखो तवंगरी के दरवाजे खुलेंगे। आपको मैं कंजुल अम्वाल की एक हदीस सुनाता हूं। आका का फरमान है, जो बंदा, हदूस का फरमान है हजूर का, एक साइल आया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत तंगदस्ती की बहुत ज्यादा उसने हालात सुनाए। मेरे हुजूर ने फरमाया जब घर में दाखिल हो सलाम कर, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़, बस अस्सलामु अलैकुम सलाम और एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह, ये हर हालत में पढ़ सकते हैं, जुबान पाक है। कुछ अर्से के बाद वो बंदा वापस आया कि या रसूलुल्लाह अब तो अल्लाह ने इतना दिया है कि पड़ोसी भी खाते हैं। मदीना मुनव्वरा में एक दरवेश के यहां बैठा था, अक्सर बैठता हूं। सऊदी अरब का बड़ा नोट 500 रियाल है, बेहतरीन लिबास पहनते हैं, जो आता था चुप करके ऐसे नोट निकाला और ऐसे मुट्ठी में दे देते थे। मुझसे कहने लगे आपके यहां वो 70 शिफाएं हैं, दवा है बहुत अच्छी, वो लेते आइएगा। मक्की साहब फरमाने लगे कि मैं मुंह में रखता हूं तो बड़े गला साफ होता है, बड़ी अच्छी तकरीर करता हूं, तो वो लेते आए। मुझसे फरमाने लगे आप लाए हैं? हाँ। मैं कल लाऊंगा। नहीं भाई अभी चल के लेते हैं, होटल सामने था। तो मैं मेरे साथ चले गए ईशा के बाद। जब कमरे में दाखिल हुए ना, अहक लफ्ज मैंने सुना। अच्छा, मैंने कहा आपकी दौलत का राज का अब पता चला। कहने लगे कैसे? मैंने कहा आपने सलाम किया तो वल्लाह बड़ी हाथ पे हाथ मारा, जोर से ऐसे हंस पड़े। और फिर अजीब बात बताई, कहने लगे हमारे बड़ों के यहां गुर्बत इतनी थी, सब्जी मंडी में गिरी हुई सब्जियां, गली हुई सब्जियां, गली हुई चीजें लाते थे, उनको काट के साफ करके, बाद वक्त नमक मरच भी नहीं होती थी, उबाल के खा लेते थे। किसी दुर्वेश ने बताया कि जब घर में दाखिल हो सलाम कर,
और कुल हुवल्लाह पढ़, उस दिन से रब ने बख्त के दरवाजे खोल दिए। इसमें एक और वाकया याद आया। इस वक्त पाकिस्तान के वो बड़े नामवर शख्स हैं, मालदार हैं, उन्होंने अपना वाकया सुनाया और सुनाया ये डेरा इस्माइल खान में। कहने लगे मेरे घर में गुर्बत थी, मेरे चचा का घर साथ था, 7 दीवार थी छोटी सी, और हमारा घर था। वो तवंगर थे, हमें गुर्बत थी। आता तो आटा होता था तो नमक नहीं होता था, नमक होता था तो मरच नहीं होती थी, मरच होता था तो लकड़ी नहीं होती थी। घर में आखिरी गुर्बत थी। अम्मा क्या करती? अम्मा करती पुत्र है बेटा एक है, अम्मा रोटी चुप करके आधी पौंड रोटी खिला देती थी, बहनें बच्चियां रोती रहती थी। गुर्बत। यहां रखते अकामत का सर अंजाम है बेजा, इस मंजिल पर खौफ पे आराम है बेजा। हाँ, गुर्बत के भी होती है अजब छुब अजब शाम, करता है सफर जब काफिला राह तो आराम। गुर्बत। किसी ने हमें यह अमल बता दिया, घर में दाखिल हो सलाम करें और सूरत इखलास पढ़ें। हदीस का अमल है, मुस्तनद अमल है, बता दिया। कहने लगे हमने करना शुरू कर दिया। गुर्बत रही, हमने अमल ना छोड़ा। गुर्बत रही, हमने अमल ना छोड़ा। बस फैसले फिर हुए। कहा एक दफा मैं आया, अम्मा कहने लगी बेटा आटा है लकड़ियां नहीं। और मेरी चची क्या करती थी, जो भी खाती थी पीती थी उसके छिलके हमारे घर फेंक देती थी, हमें जलाने के लिए। सादा हां साड़न पीते, जलाने के लिए घर फेंक देती थी। कहा कि अम्मा कहने लगी बेटा आटा है लकड़ियां नहीं है। थोड़ी देर हुई, पहले ना ऊंट आते थे लकड़ियों के, उठा की लाद आंदी आई और लकड़ियां लाते थे। उसने क्या किया, चची ने लकड़ियों के आगे जो कांटेदार शाखें थी ना, वो सारी तोड़ के इकट्ठी करके हमारे घर फेंक दी। अम्मा कहने लगे पोतरा लकड़ियां आ गए। कहा मैंने पहली मदद देखी अल्लाह की, चची का हसद और मेरे मुताबिक अल्लाह की मदद। अम्मा ने लकड़ियां पका, उसको जला के ना अम्मा ने मुझे रोटी पका दी, मैंने एक रोटी खा ली। बस उसके बाद फतूहात और तमंगरी के दरवाजे खुलने लगे, बरकत के दरवाजे। वो शख्स कराची में रहता है इस वक्त, जो नए मॉडल की गाड़ी होती है उसकी पहले बुक होती है। आमाल की बरकत है, आमाल नबवी में जिंदगी और दुनिया आखिरत की खैरें हैं। आमाल के अंदर एक और चीज भी है, जरा मैं गौर से कहूंगा सुनना। आमाल के अंदर आमाल भी है, आमाल। समझ आइए, आमाल बरकत के दरवाजे हैं। नबवी अमाल के अंदर दुनिया आखिरत की खैरें बरकत हैं। छोटी छोटी चीजें जो बज़ाहिर छोटी हैं, बहुत पहाड़ से बड़ी, पहाड़ों से बड़ी हैं। मेरे फरमान आका का, ये निक्की की छोटी मुबारक चीजें, इनको अपनी जिंदगी में शामिल करते जाएं, जिंदगी खुशहाल बनती जाएगी, बरकत और वुसअत के दरवाजे खुलते जाएंगे और नस्लों के लिए फक्र के दरवाजे बंद होंगे, वरना याद रखना खुद चले जाएंगे और नस्लों के लिए फक्र और गुर्बत के दरवाजे छोड़ जाएंगे। पता है क्या कहेंगे, आए थे बरकत साथ ले गए। और ये वाकयात अक्सर मैंने देखे हैं। बंदा था, बख्त था, चहल पहल थी, आमद थी, बंदा गया और सब कुछ गया। जो नबवी अमाल है, इससे नस्लें पलती हैं, इससे नस्लें पलती हैं। मुझे क्या लगा फसल की एवरेज कमजोर है, मैं कहा 3 काम कर ले। जिम्मेदार बैठे हैं, मेरा भी बाप दादा परदादा जिम्मेदार भी हैं, तिजारत भी है, फकीरी दरवेशी भी है। मैंने कहा 3 काम कर ले। बैंक और सूद की कहानी ना ले, तेरी 6 एकड़ है या 20 एकड़ है, 100 एकड़ है, छोड़ दे एकड़, थोड़े एकड़ कर। उधार पे बीज, स्प्रे,
बैंक उधार छोड़ दे, दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। एक ये न कर। दूसरा, हलाल हराम से बच। किसी की बकरी आई, मेरी बकरी खा गई, मेरा जानवर खा गया, उसका पानी मैंने लगा दिया चुप करके। महकमा नहर वालों से मेट वगैरह होते हैं, मेट होते ना, हाँ मेट, ना मेट काम करने नहर वाला, लेकिन हर बंदा तो नहीं होता मेट हो। मैंने बड़े नेक लोग देखे हैं। उस वाले से दो ये न कर। और तीसरा, मैंने उनसे एक बात अर्ज की, उश्र पूरा दे, उश्र पूरा दे। जो बंदा उश्र पूरा देगा उसकी नस्लों में जागीरें होंगी, जो नस्लों में इज्जतें होंगी। मुझे सवाबी का एक पठान मिला। सवाबी में तंबाकू की काश्त बहुत होती है। सवाबी सुबह सरद में मुझे एक पठान मिला। मुझसे कहने लगा, बाबा था, बाबा बूढ़ा था, उसका बेटा ही बूढ़ा था। कहने लगा, हजरत रायपुरी के यहां मैं गया, शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह के मैं यहां गया। हजरत ने ऐसे देख के मुझे फरमाया, उश्र पूरा दिया करो। बस कहने लगा कि मैंने उस दिन के बाद उश्र पूरा दिया। उलमा से पूछ के, तोल के, एक एक पाई का हिसाब करके तो उश्र पूरा दे। फिर देख तेरी नस्लों में कीड़ा आता है, चूहा आता है, या तेरी नस्लों में स्प्रे कितना आता है, खाद कितनी आती है, और तेरी जायदाद कितनी ऐसे बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, फैलती है, फूलती है। उश्र दे। और एक काम कर, जहां पानी लग रहा हो वहां बैठ के वुजू कर ले। वुजू वाला पानी फसलों को भेज, फिर फसलों की हरियालियां दे। वुजू वाला पानी, जहां पानी लग रहा है वहां वुजू कर और वुजू वाला पानी भेज। ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी में शामिल करें, जिंदगी बाबू बहार हो जाएगी, जिंदगी में खैरें और बरकतें होंगी। और अगर इससे भी कुछ ज्यादा चाहते हैं, माल दौलत रिस्क चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? चाहते हैं? बोलें तो सो रहे हैं। चाहते हैं, फिर अपने मुखालिफीन के लिए दुआएं करें। जिसने मेरे बाप को जलील किया, मेरी मां को, मेरी बहन को, मेरे भाई को, मेरे खानदान को, मेरे घर को जलील किया, रुसवा किया, परेशान किया, छज किया, गंदा किया, उसके लिए तन्हाइयों में बैठ के दुआ करें। दिल से नहीं निकलेंगी, पत्थर रखना पड़ेगा। पर मैं कहता हूं, वो दुआएं तेरी नस्लों में रिस्क, बरकत, इज्जत, वुसअत के दरवाजे। एक अंग्रेज ने अपनी किताब में लिखा है, ऐ काश कि मुसलमानों के मोहम्मद कभी तैफ वालों के लिए दुआ ना करते, बद दुआ करते, इस्लाम सारा वहीं खत्म हो जाता। फरिश्ता आया था ना, या रसूलुल्लाह, ताइफ में आप हुक्म दे हम दो पहाड़ों को मिला दें। इतना आपको तकलीफ दी है, खून हम खून कर दिया, लहू-लुहान कर दिया। मेरे हुजूर ने दुआ फरमाई थी, मेरे हुजूर ने दुआ दी थी। उसने, अंग्रेज ने अपनी किताब में लिखा है कि काश कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ न करते, बद दुआ करते। अपनी नस्लों में, अपने मिजाजों में, अपनी तबीयतों में एक मिजाज बना ले। इदफा बिल्लती ही अहसन, जा उसकी बुराई का बदला उसको अच्छाई में दे। बड़ा ताकतवर वजीफा है ये दुआ, बड़ा ताकतवर अमल है ये दुआ, बड़ा ताकतवर निजाम है ये दुआ। बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर। अगर आप चाहते हैं कि आप घर से बीमारियां दूर हो, तकलीफें दूर हो, नाकामियां खत्म हो, एक तो मैंने सलाम और कुल वल्लाह का अमल बताया। एक अमल बताता हूं हम जो हमारे अकाबिर का है। मेरे हर अमल का मेरे पास सबूत भी है, हवाला भी है, सनद भी है। चारों कोनों की तरफ मुंह करके ना 3-3 बार आयतल कुर्सी पढ़े। और अगर खेत की तमंगरी चाहते हैं, फैक्ट्री